Hi, everyone. Welcome to part two of the Guiding Hand podcast. So, today we have Dr. Priyanka Arora, who's a gynecologist, and we will be talking about starting from adolescent to PCOD problems to conceiving, infertility, after pregnancy, general health, breast examination, and a lot more. So, keep watching till the end. So, what are the most common health concerns of an adolescent girl? Okay, so adolescents they mainly come with two concerns. First is that about their periods because it's new to them. The puberty is new to them. So many of them they have irregular periods or they have skin changes or they have changes in their body which they don't understand. So that is one of the problems they come with. And the second, in their late adolescent or maybe early 20s, they come with unmet needs of contraception. That is something that is, at least in Delhi, it is nothing that is hidden. We have a lot of girls who come with contraceptive need and needs of abortion, and sexual education is lacking in our country. And how can parents understand the adolescent girls and make them understand about menstrual irregularities? And because I think girls get very much intense कि हमारे menstrual irregular हो गया. And Yes. I think this is very common also these Yes, days. yes. So that's what the education part for women in our country is kind of lacking. The girls, when they start their periods, they're not aware of what changes are normal and what is probably not normal. So the parents, they need to talk to their kids. They need to tell them in advance that probably this is what is going to happen with you, and these are the changes that your body will go through. So you'll have your periods. They come probably every month, and then your body is going to change. You're going to develop your breast, and then your skin is going to change. You'll have some hormonal issues also. So parents, they need to have a contact with their children. Like parents should be the first one that children come to with these problems. They should not be looking the internet or Google for it. They should go to their parents. And so I think connecting with them and probably preparing them beforehand, that is the best they can do. और हमारी लाइफस्टाइल और डाइट क्या रोल प्ले करती है इन मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज या आजकल के बच्चों का खाना ही इतना ज़्यादा खराब होता जा रहा है कि हम सुनते हैं कि बहुत ज़्यादा नॉनवेज खाने से भी आजकल हार्मोनल चेंजेस होते हैं बच्चों को छोटी लड़कियों को कि जल्दी पीरियड्स आ जाते हैं Right, और right. दैट एंड उससे भी इरेगुलरिटीज होती है कैन यू प्लीज गाइड सम सो डॉक्टर करीमा, ये तो बिल्कुल मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आजकल. लाइफस्टाइल अर्बन पॉपुलेशन में, एटलीस्ट इंडिया में, इतना ज़्यादा चेंज हो गया है रूरल से कि सो मेनी हेल्थ प्रॉब्लम्स वो सिर्फ अर्बन पॉपुलेशन में ही आ गई हैं. अब अर्ली पीरियड्स आना, पीरियड इरेगुलर होना, इतना कॉमन पीसीओएस का प्रॉब्लम होना, इतना कॉमन इनफर्टिलिटी होना, ये आज की डेट में विलेजेस में इतना कॉमन नहीं है जितना अर्बन पॉपुलेशन में है. Right. मोस्टली बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल, है ना. सो ईटिंग हैबिट्स में आजकल दिल्ली में बर्गर, पिज़्ज़ा, पेस्ट्रीज सब हैंड्स ऑन है. मतलब यू जस्ट क्लिक योर फोन और आपके घर पे आके डिलीवर हो जाएगा, विच इज़ ऑब्वियसली नॉट हेल्दी. सो व्हेन यू ईट जंक फूड, व्हेन यू ईट सो मच अनहेल्दी फूड, तो आपके हार्मोन इम्बैलेंस होना लाजमी है. एंड वंस हॉर्मोन्स को है पूरी बॉडी हॉर्मोन से रेगुलेट होती है. तो चाहे आपका वेट गेन हो, चाहे आपके शुगर के पैरामीटर्स हो, चाहे आपका हाइपरटेंशन हो, चाहे आपके पीरियड्स की प्रॉब्लम हो, चाहे आपकी फर्टिलिटी हो, एवरीथिंग गोज बैक. सो लाइफस्टाइल तो मतलब इट हैज़ बिकम एन एपिडेमिक नाउअडेज. द लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, वो तो हमें वी हैव टू कंट्रोल. एंड यू जस्ट सेड कि अर्बन गर्ल्स आजकल दिल्ली में बहुत कॉमनली अबॉर्शन के लिए आ रही हैं Yes. ठीक है एंड उनको भी अर्ली कॉन्ट्रसेप्शन एंड Yes. स्टफ तो how can parents guide kids about sexual health and about all these because I think अभी हमारे schools में आना तो ये बहुत टाइम लग टाइम है, जाएगा टाइम नहीं नहीं, ये लगेगा। पेरेंट्स की ही ड्यूटी है डॉक्टर गरिमा. आई विल गिव यू एन एग्जांपल. मेरे पास एक लड़की आई थी जो प्रेग्नेंट हो गई थी, एंड अनफॉर्चुनेटली उसकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी थी. तो उसका ट्यूब बर्स्ट हो गया था एंड शी वाज ब्लीडिंग इन हर टमी. सो आई वाज टेलिंग हर कि आपके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, एंड द ओनली थिंग शी हैड इन अ माइंड वाज कि नहीं, मुझे तो 7 बजे घर पहुंचना है वरना मैं मम्मी पापा को क्या बताऊंगी. दैट वाज द ओनली थिंग शी वाज थिंकिंग. लाइफ बाद में आ रही थी उसके लिए. ये सिचुएशन है आजकल बच्चों की. वो इतने ज़्यादा डरते हैं अपने पेरेंट्स से सेक्शुअल हेल्थ को लेके. जबकि मैं अगर नॉर्मल बात करूं तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे लॉ में 18 अबव अ गर्ल इज एन एडल्ट एंड शी हैज़ द राइट टू चूज अ सेक्शुअल पार्टनर. तो मतलब कोई क्राइम नहीं है वो. पर बच्चों के मन में इतना डर है अपने पेरेंट्स को लेके, अपनी हेल्थ से भी ज़्यादा. तो पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. मतलब मैं यहाँ पे बैठ के प्री मैरिटल सेक्स को एडवर्टाइज नहीं करना चाह रही हूँ, बट आप कम से कम इतना एजुकेशन अपने बच्चों को दे सकते हो कि उनको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसको आइडेंटिफाई करके आपसे डिस्कस कर ले बिफोर इट इज टू लेट.
है ना, अबॉर्शन की नौबत ही नहीं आनी चाहिए अगर हम कॉन्ट्रासेप्शन अच्छे से बता देंगे। सो वो तो पेरेंट्स को थोड़ा सा तो कनेक्ट करना ही पड़ेगा, इतना डर बच्चों के मन में नहीं होना चाहिए। आई थिंक ये भी बहुत बड़ा स्टिग्मा है कि हम गायनेकोलॉजिस्ट के पास बहुत अर्ली ना जाएं। हाँ, आई थिंक ये भी मुझे लगता है कि यस बहुत यस, ज्यादा है कि हम गायनेकोलॉजिस्ट के पास बहुत जल्दी ना जाएं, जब एकदम एंड में बहुत ज्यादा हाँ प्रॉब्लम हो आई जाए नो, तभी जाएं। अदरवाइज गायनेकोलॉजिस्ट के पास तो तभी जाना है जब यू आर बिगड़ जाए, प्रेग्नेंट और हाँ। समथिंग लाइक नहीं, मैं सबको ये कहती हूँ, इफ़ यू आर प्रेग्नेंट और इवन इफ़ यू हैव अ डाउट कि आप प्रेग्नेंट हो, तो प्लीज़ गायनी के पास आओ। मेरे पास कितनी बच्चियाँ आती हैं जिन्होंने केमिस्ट से किट ले ली, जिन्होंने अपने बॉयफ्रेंड के फ्रेंड के कहने पे किट कर ली, जिन्होंने अपने घर पे किट ले ली, उसके बाद दे आर ब्लीडिंग एंड हमें फिर ऑपरेटिव कुछ करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें प्रिवेंट हो सकती है अगर हम टाइमली गायनी के पास आ जाएं, हम एक अल्ट्रासाउंड कराएं, हम गायनी के ऑब्जर्वेशन में पिल्स लें और हम सारा प्रोसेस ठीक से करें। अब बच्चों को क्या लगता है कि हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो ये बड़ी बड़ी चीज़ें हो जाएंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब आप डॉक्टर के पास जाएंगे जिसके पास एक नॉलेज है, तो आपको ज़्यादा प्रोटेक्ट करेगा, वो आपकी बेटर ट्रीटमेंट करेगा रादर देन एक नेबर जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी हेल्थ से। तो एक एजुकेटेड, ये अर्बन में बहुत ज्यादा हो गया है कि प्रीमैरिटल सेक्स की वजह से बच्चे आ रहे हैं। मैं क्या इट्स वेरी मतलब I should say, इस सेंस में थोड़ा वेस्टर्नाइज होता जा रहा है। अब अर्बन स्पेसिफिकली बोलना ठीक नहीं है, बिकॉज इवन रूरल में भी ये प्रॉब्लम है, जहाँ पे इतने अच्छे से एड्रेस नहीं हो पाती। अर्बन में हेल्थ फैसिलिटीज़ बेटर है तो शायद एड्रेस ज़्यादा हो पा रही हैं। बट ये बात तो है कि हर एक एज ग्रुप की एंड हर एक क्लास की लड़की मेरे पास इस प्रॉब्लम से आ रही है। तो एजुकेशन इज़ दी ओनली थिंग वी कैन डू। बच्चों को रोकना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर एजुकेट कर देंगे तो लाइफ सेविंग हो जाएगा। नॉट जस्ट अबॉर्शन, एसटीडीज वो भी इम्पॉर्टेंट है। बच्चों को प्रोटेक्शन पता ही नहीं होगा तो इन्फेक्शंस कॉन्ट्रैक्ट करते रहेंगे। यहीं अगर उनको सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस पता है तो इवन आई एम नॉट सेइंग इट इज़ राइट और रॉन्ग, बट ऑल आई एम सेइंग इज एटलीस्ट यू विल बी सेफ। आई फील जैसे कि उनको पहले एजुकेट करें अबाउट ऑब्वियसली जब वो टीनेजर्स हो रहे हैं 16 राइट के आसपास आ रहे हैं, राइट हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, उनका मन राइट कर रहा है एंड दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अदर सेक्स। राइट बट आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस पेरेंट्स also to make them यस comfortable, make them understand about what it is, what should be done, what should not be done, and I think you should not cross your limit to a certain extent. एग्जैक्टली एग्जैक्टली, मुझे यही लगता है पेरेंट्स ऑब्वियसली एंकरेज तो नहीं करेंगे, बट एक ऐसा एनवायरनमेंट घर में होना चाहिए जहाँ पे अगर बच्चे को प्रॉब्लम है तो सबसे पहले आपके पास आए, रादर देन बाहर या इंटरनेट पे कोई एडवाइस ढूंढे। वो उनके लिए सेफ नहीं है, क्योंकि इंटरनेट पे इतना कुछ लिखा हुआ है। मतलब मेरे पास बच्चियाँ आती हैं इंटरनेट पे पढ़ के कि मैम मतलब हमारा किट तो नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, एवरीथिंग इज नेगेटिव, फिर भी मुझे डाउट है क्योंकि इंटरनेट पे लिखा हुआ है कि शायद प्रेगनेंसी हो सकती है। दे हैव सो मच ऑफ नॉलेज, सो मच ऑफ इफ्स एंड बट्स कि वो कंफ्यूज्ड हैं सारे बच्चे। अगर घर पे पेरेंट्स होंगे जो उनको एक सेफ एनवायरनमेंट देंगे तो एटलीस्ट प्रॉब्लम्स तो शेयर हो पाएंगी, तो इट इज इम्पोर्टेंट। लेट्स टॉक अबाउट इन्हीं टाइम में पीसीओडी एंड पीसीओएस बहुत ज्यादा कॉमन हो जाता है, एंड आई थिंक इट हैज बिकम पेंडेमिक कि एवरी अदर गर्ल you hear that they are suffering from PCOD and they are not they are having irregular periods, and what do you mean by actually PCOD and PCOS? So pretty much the same. PCOD is polycystic ovarian disease and that is polycystic ovarian syndrome. तो आजकल हम डिजीज इतना वर्ड नहीं यूज करते जितना हम सिंड्रोम यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज पीसीओडी इज नॉट वन डिजीज कि इसको हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। इट इज मोर ऑफ कंपाइलेशन ऑफ थिंग्स कि एक लड़की को प्रॉब्ली अल्ट्रासाउंड पे पॉलिसिस्टिक ओवरीज हैं, साथ में मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज भी हैं, साथ में थोड़े से एंड्रोजन के इश्यूज भी हैं, विच मीन्स मेल फीचर्स भी आ रहे हैं, साथ में थोड़े से लाइफ टाइम डिसऑर्डर्स के भी रिस्क बढ़ रहे हैं। तो ये सब एक सिंड्रोम है। इट इज डिफरेंट फ्रॉम पॉलिसिस्टिक ओवरीज, विच मीन्स हमें अल्ट्रासाउंड पे ओवरीज में पॉलिसिस्टिक मिले हैं, लेकिन बच्चे को कोई फीचर्स नहीं है, बच्चे के पीरियड्स ठीक आ रहे हैं, बच्चे की फर्टिलिटी ठीक है, बच्चे के बाकी हार्मोन्स ठीक है, देन वी जस्ट लेट देम बी। बट पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, व्हेन शी इज शोइंग साइंस, देन वी हैव टू ट्रीट हर। And what are the initial signs that somebody see कि हाँ अब मुझे gynecologist के पास जाना चाहिए कि maybe I am suffering from PCOD, या what signs anybody sees that कि अब तो menstruals तो start हो गए। वैसे मेरे को लगता है कि जैसे initially few years तो उनको normal चले थोड़े से, and suddenly they started having problems with their periods, and when to identify and what are the probable signs somebody notice and think कि यार अब तो चलना चाहिए डॉक्टर के पास। अच्छा गरिमा, इसमें मैं वन थिंग आई वुड लाइक टू से कि गायनी का चेकअप तो एनुअल होना चाहिए, हर साल एक बार तो आना ही चाहिए, सो दैट हम अर्ली स्टेज में चीज़ें पकड़ पाएं।
बट वैसे जब हम साइंस की बात करते हैं पीसीओएस के लिए, तो 2-3 चीज़ें जो देखनी चाहिए, एक तो हर मंथ पीरियड आना इम्पॉर्टेंट है, और किसी का साइकिल अगर थोड़ा डिलेड है तो हम 45 डेज का अपर लिमिट मानते हैं। लेकिन अगर किसी लड़की को 2-2, 3-3, 4-4 महीने पीरियड्स नहीं आ रहे, सो दैट इज अ साइन ऑफ पीसीओएस, तब आपको चेकअप के लिए आना जरूरी है। सेकेंड इज, बहुत सारी लड़कियों का सिर्फ साइन ये होता है कि वो डाइट ठीक है, एक्सरसाइज ठीक है, लेकिन वेट गेन हो जा रहा है, एंड दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाई, बिकॉज दे हैव अ हार्मोनल इशू। तो अगर आपको अनएक्सप्लेन्ड वेट गेन लग रहा है तो भी आपको डॉक्टर को करना है। थर्ड, कॉस्मेटिक चेंजेस जो पीसीओएस कराता है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव पिंपल्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हेयर लॉस हो रहा है, मेल पैटर्न ऑफ हेयर ग्रोथ हो रही है, बियर्ड आ रही है, मुस्टाच आ रही है, हार्ड हेयर आ रहे हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है, वो भी पीसीओएस का साइन हो सकता है, उसमें भी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। And does it PCOS have मतलब affect your reproductive health also? मतलब reproduction में भी does it affect? गरिमा, PCOS is the number one cause of infertility, at least in Oh. Delhi. So, PCOS में क्या हो रहा है, जो हमारा नॉर्मल साइकिल है वो 2 फेजेस में, फॉलिकुलर फेज, लुटियल फेज, बीच में ओव्यूलेशन होती है, एंड देन हमें पीरियड्स आते हैं। सो फॉलिकुलर फेज इज बेसिकली ईस्ट्रोजन एंड लुटियल फेज इज प्रोजेस्टेरोन। PCOS में ओव्यूलेशन में प्रॉब्लम है। So the girls, they are not ovulating on time. Instead of ovulation, they form cysts, छोटे छोटे polycystic. तो ये हार्मोन का जो बैलेंस है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का, ये सब हेवायर हो गया इन बच्चियों में। सो जब ओव्यूलेशन ही नहीं हो रहा तो रिप्रोडक्शन भी प्रॉब्लम है, बिकॉज हार्मोन्स इम्बैलेंस है तो पीरियड्स भी प्रॉब्लम है, बिकॉज हार्मोन इम्बैलेंस है तो स्किन के भी प्रॉब्लम्स हैं, एंड बिकॉज हार्मोन इम्बैलेंस है तो लॉन्ग टर्म के भी प्रॉब्लम्स हैं। तो इनफर्टिलिटी तो इन लड़कियों में बहुत कॉमन है। बट सेड दैट इन PCOD, infertility is the number one treatable cause also. Okay. It can be treated very easily if you visit a doctor on time. तो treatable है, but number one cause है। क्या लाइफस्टाइल चेंजेस से हमारा पीसीओडी को हम बैलेंस आउट कर सकते हैं, मतलब एक क्योर कर सकते हैं? लाइफस्टाइल और डाइटरी चेंजेस और एक्सरसाइज रिजिम से कैन बी ट्रीटेड, और डू वी नीड टू टेक दैट हार्मोनल मेडिकेशंस? right. बिकॉज आई रिमेम्बर मुझे भी था back in time, and I also used to take those 21 days Pills, right. pills and all. But वो pills लेने से भी I feel मे बी अब बहुत एडवांस हो गया, तो मेरा वेट गेन बहुत हो गया था, हेयर ग्रोथ होना स्टार्ट हो गई थी। Right. सो क्या सिर्फ हम लाइफस्टाइल और डाइटरी से भी इसको करेक्ट कर पाएंगे, या फिर आई यू फील के नहीं हमें मेडिकेशन से चाहिए? नहीं डॉक्टर गरिमा, मैं बच्चियों को ना सबको यही समझाती हूँ, PCOS है ही एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। Okay. तो अगर हम लाइफस्टाइल करेक्ट करेंगे, व्हाट वी आर टोल्ड इज, इफ यू लूज 10% ऑफ योर बॉडी वेट, 50% ऑफ द टाइम ये रिवर्स हो सकता है। 50% ऑफ द टाइम्स आपके सिम्टम्स सारे खत्म हो जाएंगे। अब मैं ये नहीं कह रही PCOD जड़ से खत्म हो जाएगा, आपको टेंडेंसी तो रहेगी कि आप वेट गेन वापस करोगे तो वापस आ सकता है, बट अगर आप वेट कंट्रोल करेंगे तो PCOD इज रिवर्सिबल। अब उन बच्चों में जिनमें PCOD बहुत एडवांस हो चुका है एंड वेट कंट्रोल इज गोना टेक 6-7 months, उनमें हमें हार्मोनल बैलेंस लाने के लिए पिल्स देना पड़ता है। तो पिल्स डॉक्टर भी मजबूरी में देता है कि अभी हमें मैनेज करना है, एंड तब तक आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कंटिन्यू करो। हम जब भी एक प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं ना PCOD की, उसमें फर्स्ट एडवाइस हमेशा हमारा होता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, उसके बाद और कुछ आता है। सो गुड डाइट, एक्सरसाइज, स्लीप, यू हैव टू हैव 8 hours ऑफ अनइंटरप्टेड स्लीप, जो बच्चे आजकल नहीं करते, सब गड़बड़ होता है उनका। सनलाइट, सबको विटामिन डी की डिफिशियंसी है, कोई घर से बाहर नहीं जाना चाह रहा है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ उससे भी कम होती है। एंड स्ट्रेस, एवरीबॉडी सो स्ट्रेस्ड, रैट रेस है, सबको हर किसी चीज का स्ट्रेस है। बच्चे हैं उनको पढ़ाई का स्ट्रेस है, मैरिड है उनको बच्चे करने का स्ट्रेस है, इतना सारा स्ट्रेस हो रहा है। विद ऑल दीज थिंग्स वी कैन नॉट हैव अ हार्मोन इन बैलेंस। तो थोड़ा सा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन तो करना नेसेसरी है। सो आपने बोला जो मैरिड है उनको बच्चे करने का स्ट्रेस है, तो उस पे नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि फर्टिलिटी के लिए, इनफर्टिलिटी के लिए वुमेन के लिए कौन कौन से कॉजेस हो सकते हैं कि वुमेन कैन, like if they are trying to conceive and they are not able to conceive, so what all can be reasons? जैसे मैंने बोला, फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो PCOD होता है, मतलब उनके एग्स ही अच्छे नहीं बन रहे हैं, सो दे आर नॉट एबल टू कंसीव। सेकेंड, इन्फेक्शंस बहुत कॉमन है डॉक्टर गरिमा, हमारे देश में TB बहुत कॉमन है, एंड TB साइलेंटली इन्फेक्शन करता है इन द ट्यूब्स, एंड इट कॉजेस इनफर्टिलिटी साइलेंटली, मतलब अ गर्ल विल लुक एब्सोल्युटली नॉर्मल बट उनके ट्यूब्स खराब हैं, दे आर नॉट एबल टू कंसीव। So that is the second most important cause, infections. And then there are other causes also. हम ऐसे बोलते हैं कि 30% causes female dependent होते हैं, 30% male dependent होते हैं, and 30% दोनों को मिला के होते हैं। Right. So each part is important. एक चीज़ मैं इसमें ज़रूर कहूँगी, इनफर्टिलिटी में couples come to me with guilt कि हमारा बच्चा नहीं हो रहा, हमारी कोई गलती है।
अब ये हमें समझना है बीमारी तो सारी बीमारियां हैं, खांसी जुकाम भी बीमारी है, इन्फेक्शन भी बीमारी है, कैंसर भी बीमारी है, इनफर्टिलिटी भी बीमारी है, तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है ना। ये टैबू आई थिंक रिलेटेड है, टैबू है। ये सब हमारी दादियाँ नानियाँ हाँ, टैबू क्रिएट कर देती हैं कि नहीं हो रहा बच्चा, मतलब तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। एंड देन सो हाउ कैन वन आफ्टर हाउ लॉन्ग couple should decide to seek a medical help कि they are not able to conceive, so कब उनको डिसाइड करना चाहिए कि अब तो मुझे मेडिकल हेल्प लेना ही है अब क्या? अच्छा, देखो, बाय बुक्स बाय डेफिनेशन तो हम कहते हैं कि 1 साल का इंटरकोर्स, मतलब विदाउट कॉन्ट्रसेप्शन, राइट, अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स 1 ईयर। बट आजकल मैरिजेस इतने लेट हो रहे हैं ना डॉक्टर गरिमा, एवरीबडी इज गेटिंग मैरिड एट प्रॉब्ली देयर अर्ली 30s एंड प्लानिंग एट लेट 30s, तो 1 ईयर इज अ लॉन्ग टाइम। सो अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, आपकी एज ज़्यादा है या आपको पता है कि हाँ मेरे को पीसीओडी है, मेरे पीरियड्स इरेगुलर है, तो आप 6 मंथ्स पे भी सीख कर सकते हो। आइडियली प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग होनी चाहिए, विच मीन्स आइडियली द मोमेंट यू स्टार्ट थिंकिंग कि मुझे बच्चे करने, यू शुड विजिट अ डॉक्टर, विल गेट अ स्क्रीन डन। हाँ, आपकी फर्टिलिटी भी चेक करते हैं, इन्फेक्शंस के लिए भी चेक करते हैं, वैक्सीनेशंस के लिए भी चेक करते हैं, एंड उसके हिसाब से भी मेक अ प्लान। I think couples get stressed too easily. With my second child, मैंने pre counseling लिया था, and I started taking folic acid. Right. Still after 2 months, when we were trying and not able to conceive, इतना stress हो गया था, इतना stress हो गया था, that my husband said it's okay. नहीं हुआ. I think couples get very much stressed also if they're not able to conceive, and that stress also leads to के बहुत pressure ले लेते हैं. प्रेशर तो अब कपल्स का फॉल्ट है कि सोसाइटी का फॉल्ट है, आई डोंट नो, बट प्रेशर तो इनफर्टिलिटी में डॉक्टर्स आर सेकंड विक्टिम्स। एवरी टाइम पेशेंट का एक नेगेटिव आता है, वो दुखी होते हैं, हम उनसे ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, क्योंकि इतना प्रेशर, इतना स्ट्रेस है, एंड स्ट्रेस में आप और कंसीव नहीं करोगे। आई विल टेल यू वन स्टोरी विद दिस। जब कोविड का पैंडेमिक था, ऑल आर हॉस्पिटल्स वर ओनली डीलिंग इमरजेंसीज, तो हमने सारी रूटीन केयर बंद कर दी थी, हमने इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट बिल्कुल बंद कर दी थी। हमने सब कपल्स को बोला कि अभी जाओ, पैंडेमिक बंद होगा तो वापस आना, एंड बिलीव मी, अबाउट 30-40% ऑफ द कपल्स दे कंसीव नेचुरली, क्योंकि कोई स्ट्रेस ही नहीं था उनको, ना ट्रीटमेंट का स्ट्रेस, ना बच्चा करने का स्ट्रेस, वो तो घर पे दे वर ओनली रिलैक्सिंग। 10 years आफ्टर द मैरिज ऑल्सो दे कंसीव्ड। तो स्ट्रेस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें। Agree to it. I think emotionally and physically also we feel so much drained out कि हो नहीं रहा है, हो नहीं रहा है, and then we decide to seek medical help. And what all if somebody is not able to conceive, so what all हमारे पास conceive के options are available Right. in if they are not able to conceive. For tell me please with both the things, like if male is not able to, is not एंड फीमेल इनफर्टिलिटी में ना हमारा प्लान जो होता है वो बहुत ही पर्सनलाइज्ड होता है, डिपेंडिंग ऑन कि किस टाइप का कपल हमारे पास आया है, किस सिचुएशन में आया है। तो इनफर्टिलिटी में पहले हमें प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बोला, अगर ट्यूब्स का दिक्कत है, ट्यूब्स ही बंद हैं, तो नेचुरल मेथड्स फिर हमारे पास बहुत ज़्यादा है नहीं, फिर हम आईवीएफ का ही सोचते हैं सीधा। बट वहीं पे अगर पीसीओएस का प्रॉब्लम है कि हमें सिर्फ एग्स नहीं मिल पा रहे हैं और हम मेडिसिन देंगे, एग्स बन जाएंगे तो बेबी फटाफट हो जाएगा, तो फिर हम मेडिकल ट्रीटमेंट सोचते हैं। यहीं पे कहीं पे हमें लगता है कि फाइब्रॉइड्स की प्रॉब्लम है, वो इंटरफेयर कर रहा है, तो हम सर्जिकल ऑप्शन सोचते हैं। तो ऑप्शंस की कमी नहीं है, बेबी मतलब बाय दिस और दैट वी ट्राई कि बेबी तो हो ही जाए, बट हमें पहले एग्जाम टेस्ट कराने पड़ते हैं। वी हैव टू हैव अ थॉरो इन्वेस्टिगेशन टू अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, बिकॉज बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि हम इतने टेस्ट कराएंगे, हम ये कराएंगे, हम वो कराएंगे, और स्ट्रेस बढ़ता है उससे। पर मैं सबको ये बताती हूँ, प्रॉब्लम पता हो तो इलाज करना ईजी है, प्रॉब्लम पता ही ना हो तो इलाज करना ज़्यादा डिफिकल्ट है। सो इट इज़ क्वाइट पर्सनलाइज्ड। एंड एडवांसमेंट्स का आईवीएफ का एक फियर हो गया है आजकल पॉपुलेशन में कि ओहो आईवीएफ करना पड़ेगा, और बहुत सारे डाउट्स हैं बच्चों के मन में आईवीएफ को लेके कि आईवीएफ में ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। बट मैं सच बता रही हूँ, मेरे करियर में जितने मैंने आईवीएफ बेबीज में खुशियाँ देखी हैं ना, प्रॉब्ली नॉर्मल में नहीं देखी हैं। सो जब 20 साल के बाद आपको बच्चा मिलता है तो आप भूल जाते हो 9 महीने आईवीएफ की कैसे थे, वो आप भूल जाते हो, वो बच्चे की खुशी बहुत होती है। सो आईवीएफ इज अ मैजिक। but that IVF treatment, infertility treatment must be very tiring for both women and men. Are they a lot of monetary also goes into it? नहीं, दैट इज ट्रू डॉक्टर गरिमा, नेचुरल वे इज द बेस्ट। जब नेचुरल हो जाए तो कोई नहीं सोचता है ना, मेडिसिन का सोचता है ना, आईयूआई का सोचता है ना, आईवीएफ का सोचता है। आईवीएफ मजबूरी में ही करता है डॉक्टर भी, पेशेंट भी।
तो बहुत अच्छा प्रोसीजर तो नहीं है. इट इज़ पेनफुल ऑल्सो, इट टेक्स अ टोल ऑन योर पॉकेट्स ऑल्सो. ये मेंटली भी बहुत टोल लेता है, ये आपकी बॉडी पे भी बहुत टोल लेता है. बट वही है, अगर जब हमारे पास ऑप्शंस खत्म हो जाते हैं, देन वी कम टू आईवीएफ. एंड दोज हु हैव गॉट बेबीज बाय द आईवीएफ, उनको आप पूछोगे तो वो कहेंगे अब जो हो गया वो हो गया, बच्चा मिल गया मुझे, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. हाँ. So, doctor, what are the essential steps couples should take and to try to conceive naturally? And how can they track their ovulation? And is there any tool which can help them track the ovulation part? Because a lot of women still don't know that they can actually track Right. their ovulation, and they can try on those particular dates only. ओके, सो व्हाट आई टेल कपल इज कि बेस्ट तो है आप ट्रैक ही मत करो. यू रिलैक्स एंड ट्राई टू हैव इंटरकोर्स प्रोबेबली 2 3 to 4 times a week, है ना. बट अगर कई कपल्स क्या होते हैं, दे आर नॉट लिविंग टुगेदर, या उनके नाइट शिफ्ट्स होते हैं, या उनको टाइम बाउंड होता है, उनके लिए कैलेंडर्स आर गुड. सो विच मीन्स यू हैव टू नो योर फर्टाइल पीरियड. जनरली अगर आपके पीरियड्स रेगुलर हैं तो आपका फर्टाइल पीरियड समवेयर 10th से 20th डे के बीच में लाया करता है. 14th डे हम कहते हैं ओवुलेशन का डे है. तो ड्यूरिंग दीज 10 days एवरी ऑल्टरनेट डे यू कैन हैव इंटरकोर्स. इसके अलावा टूल्स की बात करें तो कुछ फिजिकल चेंजेस आते हैं आपको जो आप ट्रैक कर सकते हैं. आपका टेम्परेचर राइज करता है उस टाइम पे, योर म्यूकस चेंजेस, बट ये सब बहुत एक्यूरेट नहीं है. देन वी हैव किट्स, वी हैव ओवुलेशन किट्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं, जिस पे आप ड्यूरिंग योर फर्टाइल डेज रोज टेस्ट कर सकते हैं. द डेट इज पॉजिटिव, आपके पास 12 आवर्स का गुड विंडो होता है ओवुलेशन का. बट हैविंग सेड ऑल दैट, मैं अभी भी यही कहूंगी कि स्ट्रेस मत लो. इंस्टेड रिलैक्स होके उन डेज में ज़्यादा इंटरकोर्स करो, वो बेटर है आपके लिए, रादर देन आप ट्रैक करके कह रहे हो इन्हीं 12 घंटे में. यू नो, दिस प्रॉब्लम्स प्रॉब्ली गर्ल्स डोंट फेस दिस प्रॉब्लम. उनके पार्टनर्स मुझे कंप्लेन करते हैं कि जब मेरा फर्टाइल डे होता है तो शी कम्स टू मी एंड से कि वी हैव ओनली 2 hours, एंड इट इज़ अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन द गाय. तो मेरे को हस्बैंड्स कंप्लेन करते हैं कि मैम मुझे ये बहुत प्रॉब्लम आ रही है. तो मैं उनको समझाती हूँ कि भाई उन दिनों में आप थोड़ा ज़्यादा फ्रीक्वेंट कर लो, दैट विल बी मोर कंफर्टेबल फॉर बोथ ऑफ यू, rather than you track and then tell a specific time. And any nutritional supplements, or they should both Right, take right. while Uh, trying to Dr. conceive? Garima, nothing can beat a good plate of healthy food. तो अगर हम 100 सप्लीमेंट्स ले रहे हैं और हम शाम को बाहर जाके अल्कोहल ले रहे हैं एंड पिज़्ज़ा ले रहे हैं तो हमारी बॉडी खराब होगी. सो गुड प्लेट इज बेटर. अगर हम सप्लीमेंट्स की फिर भी बात करें तो समवन हु इज ट्राइंग, उसको फोलिक एसिड तो लेना ही चाहिए. दैट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ बेबी, बहुत सारी एनोमलीज को प्रिवेंट करता है. उसके अलावा विटामिन डी, विटामिन B12 ये इंडियन पॉपुलेशन में हमेशा डेफिशिएंट पाया जाता है, तो मल्टी विटामिन्स वी कैन टेक. बट इट इज़ ऑलवेज बेटर यू गेट योरसेल्फ टेस्टेड. जो डेफिशिएंसीज हैं उनके स्पेसिफिक सप्लीमेंट्स लीजिए आप. सब कुछ लेने का हर किसी को ज़रूरत नहीं है. And if they are jackpot and they got pregnant, Right. so how is that early pregnancy and or prenatal may they should support each other, and or how they should seek medical advice immediately, Right. and how can a husband help their wife during Um, that phase? आजकल एक नया आया है ना, वाइफ इज नॉट प्रेग्नेंट, कपल्स आर प्रेग्नेंट. Oh, सो इट इज ट्रू, कपल्स आर प्रेग्नेंट. तो हर एक विजिट पे एक तो मैं हमेशा बोलती हूँ कपल्स शुड कम टू मी, नॉट जस्ट द गर्ल, बिकॉज बच्चा तो दोनों का है ना, और मेहनत भी दोनों की है आजकल. एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी द चेंजेस इन पोस्टपार्टम. आजकल हस्बैंड्स आर सो सपोर्टिव, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. मतलब दोनों ही आते हैं, और जब दोनों आते हैं तो मदर आ रही होती है, बच्चे को फादर लेके आ रहा होता है. सो दैट इज़ अ वेरी गुड चेंज. बट आप जो कह रहे थे प्रेगनेंसी में मेडिकल हेल्प, तो आपको मैंने पहले भी बोला था, एज सून एज यू आर प्रेग्नेंट और यू इवन हैव अ डाउट दैट यू आर प्रेग्नेंट, यू शुड सीक मेडिसिन हेल्प just to make sure pregnancy healthy है. That is the first step. If it is healthy, then you'll have your supplements, you'll have your scans, you'll have your tests. ये सब ना important है. डॉक्टर करीमा, बेबीज तो हो जाते हैं, बेबीज हम कोई भी टेस्ट ना करें तो भी हो जाते हैं. पर अगर हम विद मेडिकल हेल्प टेस्ट करा के, हमारा काम सिर्फ इतना है एबनॉर्मैलिटी ढूंढना. Yeah. तो अगर कोई प्रॉब्लम है वो डिटेक्ट हो जाए टाइमली, दैट इज ऑल वी डू. बाकी प्रेगनेंसी खुद ही चलती है. So it is important that you get all your screenings done, all your tests done, blood test included, all your scans done, and अपनी injections and अपने tablets सारे time पे लें. It is very. And I read it somewhere, Dr. Priyanka, कि PCOD की girls आती हैं after मतलब कि they thought कि PCOD है, मेरा 3 months skip हो गया, 4 months skip हो गए, and 4 months के बाद they are coming to you and Right. coming to gynecologist and understanding that they are pregnant. So it was how to 10 days back.
a girl came to me and she said that I have PCOD. Please give me something for my periods. We got a test and she was positive. तो उसने कहा ओहो हो सकता है गलती से कुछ हो गया हो. हमने स्कैन किया and I saw this big 6-month-old baby. So 6 months she was carrying a baby and she had no idea. PCOD में one thing we have to understand, आप infertile नहीं हो. ऐसा नहीं है कि आपके पास एग्स नहीं है या ऐसा नहीं आप बच्चे कर ही नहीं सकते हो. इट्स जस्ट दैट आपके पीरियड्स रेगुलर नहीं है तो आपका ओव्यूलेशन रेगुलर नहीं है तो आप टाइम पे आपका ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है. So this is little scary. It was a shock for her as well, and she already had 3 kids, but she has to keep the 4 kid with her now. 6 month पे we cannot do anything, and it was a surprise for her as well. चलो ठीक है, हमें तो गुड न्यूज़ देने में अच्छा लगता है, बट सरप्राइजेस लिमिटेड होने चाहिए. आपको पता होना चाहिए आप प्रेग्नेंट है तो अगर आप अपना पीरियड मिस करते हैं, इवन दो यू हैव PCOD, आपको टेस्ट जरूर करना चाहिए. यू शुड ऑलवेज गेट योर सेल्फ चेक, चाहे आप किट सिट कराएं चाहे आप ब्लड टेस्ट कराएं, बट चेक तो करना जरूरी है. यू कैन नॉट अज्यूम कि आपके पीरियड सीरियसली नहीं आए. And इससे हम थोड़ा contraception पे भी आते हैं. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. Which is very important. So after 2 babies or 3 babies, when Right. somebody think that now it's done, now It's we don't done. want anybody else in our life. Ah. So what all good and like reliable, because hormonal injections or everything, everybody don't want to go for. इन हॉर्मोन्स इन कॉन्ट्रासेप्शन, जो हमारा कॉन्ट्रासेप्शन का चैप्टर शुरू होता था ना, वो कहते थे कॉन्ट्रासेप्शन इज अ कैफेटेरिया अप्रोच. व्हाट दैट मीन्स इज हर एक केस में सेम कॉन्ट्रासेप्शन नहीं लगेगा. एवरीबडी हैज डिफरेंट कॉन्ट्रासेप्टिव नीड्स और हमें सब कुछ केटर करना पड़ेगा उनका पर्सनलाइज्ड वे से. तो मेरे पास 2 बच्चों के बाद वो लड़कियां भी आती हैं जो कहती हैं हो गया और वो भी आती हैं जो कहती हैं हमें ब्रेक चाहिए, प्रॉब्ली 2 years डाउन द लाइन मुझे और बच्चे चाहिए होंगे. और वो भी आती हैं जो कहती हैं कि हस्बैंड का स्टरलाइजेशन करवाते हैं. मतलब we have different kinds of patient and they have different needs. So we have multiple options. We have options जो कि सिर्फ 1-2 महीना आपको हेल्प करेंगे. आप बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव यूज कर सकते हैं, आप कॉन्डम्स यूज कर सकते हैं. We have options जो कि आप प्रॉब्ली 1 साल तक आराम से यूज कर सकते हैं, जैसे पिल्स हैं. We have options जो आप स्पेसिंग के लिए यूज कर सकते हैं, 2 साल 3 साल 6 साल बच्चा नहीं चाहिए तो we have कॉपर्टी. We have injections जो कि इंजेक्शन स्पेसिंग के लिए ठीक है, बट उसमें वापस आपकी फर्टिलिटी आने में थोड़ा टाइम लगता है. तो जिनको बस हो गया वाले होते हैं वो इंजेक्शंस ले सकते हैं. इंजेक्शंस का एक अच्छी बात ये है कि हम ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को दे सकते हैं. दे डोंट इंटरफेयर विद योर ब्रेस्ट फीडिंग, दे डोंट इंटरफेयर विद योर पीरियड्स. सो दैट इज वन गुड थिंग. And then we have permanent solutions, Yeah. tube and sterilization. Yes. And what if like if somebody don't want to go for injections and these hormonal things, and because I've heard, is it true that if you take injections contraception, then when you stop it you take time to conceive? Yes, that is very true. देखो पिल्स ना ऐसा है, हमने लिया उनका 12 घंटा 24 घंटा असर है, हमने नेक्स्ट पिल लिया, बट वंस यू फिनिश योर पैकेट वी आर डन विद इट. आपको नेक्स्ट पीरियड्स आएंगे, यू आर एज गुड एज नॉर्मल, बिकॉज पिल्स का असर तब खत्म हो गया. Okay. इंजेक्शंस रिवर्सिबल नहीं है. मैंने एक बार इंजेक्शन लगाया, मैं उसको निकाल नहीं सकती. अब उसका असर रहेगा बॉडी में. Right. उसका असर आइडली 3 months रहता है, बट इट कैन लास्ट अप टू 1 year. Okay, 1 year. अप टू 1 year, yes. सिंगल इंजेक्शन द इफेक्ट कैन लास्ट अप टू 1 year. तो कई लोगों को फर्टिलिटी वापस आने में 1-1.25 साल भी लग जाता है, एंड वो हमारे हाथ में नहीं रहता फिर, बिकॉज हम इंजेक्शन वापस तो निकाल नहीं सकते हैं. सो वो किसी को हम काउंसिल करते हैं तो ये सारी चीजें पहले से बता के रखते हैं हम उनको. दैट इज Because it's very इम्पोर्टेंट. tricky. इट इज ट्रिकी. इट इज ट्रिकी. क्योंकि if somebody wants to just thinking for 3 months, so they should better go for medication, यस. oral medication rather than that. And what about copper T? ओके, कॉपर टी आई डोंट नो कब इतना मेजर कहते हैं ना हवा बना. आई डोंट नो, बिकॉज बहुत ही मासूम सा है कॉपर टी. कॉपर टी का कुछ काम ही नहीं है. इट इज जस्ट अ वेरी स्मॉल डिवाइस वी पुट इन द यूट्रस सो दैट बच्चा ठहरने का स्पेस ना रह जाए. Copper T has 0 hormones, so it has 0 changes in ovulation. It has 0 changes in your hormonal health. It has 0 changes in your bleeding. अब copper T सूट की नहीं की, देखो वो So प्रॉब्लम. why suit नहीं की? सी फिर वही बात है कि हम कुछ तो फॉरेन बॉडी में रख रहे हैं ना, कभी कभी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती है. बट वी हैव टू अंडरस्टैंड वो साइड इफेक्ट इट्स ओनली 0.1 to 0.5%. मतलब 1000 में से 1, 5, 10 इतने लोगों को ही प्रॉब्लम होगा, बाकी 990 विल बी ऑल राइट. एंड इफ दे आर ऑल राइट, उनको कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, एंड 5-7 years ऑफ देयर लाइफ दे आर रिलैक्स्ड. सो one more thing I'll tell, even if you have a problem, removal of copper T is a very simple procedure. तो अगर कभी ऐसा लगेगा आपको नहीं सूट कर रहा है, आपको एक्चुअली जेन्युइन प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, सो यू कैन विजिट. So what kind of problems will somebody be facing?
इन जनरल आई ट्राई टू अवॉइड टेलिंग देम बिकॉज फिर उनको लगता है मुझे ये सब होने लगा है बट कॉपर्टी हैज़ अ टेंडेंसी कि वो ब्लीडिंग बढ़ा सकता है, कई लोगों को पेन कर सकता है, कई लोगों को कांस्टेंट सेंसेशन अच्छा नहीं लगता है, कई लोगों को इन्फेक्शन का भी रिस्क होता है बट कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं है। So, what are the most common gynecological problems a woman face? And in generally in their life, now we have already talked about infertility, Yes. PCOD, PCOS. So, other than that, what do you feel that uh, women face करती हैं and they don't go and it can land up to a big thing? ओके, इट डिपेंड्स ऑन द एज ग्रुप वी आर केटरिंग। मैं वही कहती हूँ, एक गायनी तो फ्रेंड्स बना लेती है। वही 19 साल की लड़की उनके पास आएगी मेंस्ट्रुअल हेल्थ के लिए, वही 25 साल में आएगी कॉन्ट्रासेप्टिव हेल्थ के लिए, वो 30 साल में बेबी करने को आएगी, 40 साल में वो मेनोपॉज पे आएगी, लेटर ऑन वो प्रॉब्लम यूटीआई करके आएंगी। तो हर एक एज पे डिपेंड करता है हम क्या प्रॉब्लम सॉर्ट कर रहे हैं। So how often then हम age पे depend करता है, I agree, but how often a woman should visit a gynecologist for a general checkup? Like for example, for me, I am done with 2 kids. I don't Right. want other kids. Right. Okay, I have to plan contraception. Right, right. But then, other than that, how often I should visit a gynecologist for a checkup or something like that? आइडली वी से एनुअली, बट आई नो हमारे देश में एनुअली लोग नहीं करते हैं। सो एटलीस्ट इन स्टेजेस ऑफ योर लाइफ यू कैन विजिट। सो वंस यू स्टार्ट विद योर पीरियड्स, तब एक बार आप प्रॉब्ली सेक्सुअली एक्टिव होते हैं, तब मैरिज का टाइम आता है, तब देन बेबीज एंड लेटर ऑन। 2 3 things I would want to tell for all the young girls who are listening to this. I hope each one of you is HPV vaccinated, which means cervical cancer का vaccination. So इसलिए मैं कहती हूँ young girls should visit because every time I catch hold of a young girl मैं उसको पक्का से educate कर देती हूँ for cervical cancer vaccination. मतलब it is such a wonderful thing. We have a kind of injections जो हमें बस 3 बार लगवाने हैं and then lifetime protection from a big cancer. So that is one thing I would tell everybody. Then later on your screening pap smear that is done every 3 to 5 yearly. उसके लिए आपको आना ही पड़ेगा. And after 40 years mammography. For breast cancer screening because breast cancer भी आजकल कोई एज देखता नहीं है वैसे. We have seen 30-year-old also getting CA breast. So you have to have a self breast examination. You have to have any doubt visit a doctor, and if you're over 40 get your mammography done. So everybody you advise to get their mammography done, and after how many times, how many years? Plus, uh, why there's still some every woman not uh, comfortable in checking their own breast for any tumor or any cancer or something like that. Any they are I feeling something is there. हमारे Why it हमारे is like देश के women ना बहुत sacrificing है. They are so busy in their families and in their works, and women in India they take their health the least. I don't know why. Even I don't know why. मतलब if I ask my staff here how many of them are vaccinated or how many of them are screened, the results won't be very comforting. I agree. So अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना हमारी एक्चुअली एजुकेशन में आया नहीं है अभी तक, जो आना चाहिए स्कूल से ही शुरू हो जाना चाहिए बात. Right. सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन इज नथिंग. एवरी मंथ यू पिक अ डेट यू लाइक एंड जस्ट palpate your breast and see कोई चेंज तो नहीं लग रहा आपको. अगर आपको हल्का सा भी चेंज लग रहा है विजिट अ डॉक्टर, बिकॉज इफ अ ब्रेस्ट कैंसर कम्स टू मी एट stage 1 द prognosis is so much different than a breast cancer at stage 4. एंड आप जब पकड़ सकते हो और उसको ट्रीट कर सकते हो और लाइफ सेविंग कर सकते हो, देन व्हाई नॉट. सो जो प्रिवेंटिव मेडिसिन है हमारे देश में वो बहुत लैक कर रही है. ट्रीटमेंट के लिए फिर भी लोग एक बार को आ जाते हैं, बट प्रिवेंशन वाला पार्ट थोड़ा सा लैक कर रहा है. सो And I think general hygiene के लिए, what do you want to say to all the women? How to maintain their general hygiene out there? And is the we wash good, or should we use it, or we should not use it? And is it good for them or not? सो हाइजीन इज ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट. सफाई तो रखनी ही है आपको, बट सफाई के लिए सोप एंड वाटर इज इनफ. सो मेरे पास एक बहुत ज़्यादा इफ्लुएंट सोसाइटी की लड़कियां भी आती हैं हु आर so much into hygiene that they use so many chemicals down there, they use scents down there, and they try to clean everything. उससे क्या होता है, we have a very thin biofilm. We have जो वेजाइना होता है वो म्यूकस से लाइन होता है एंड गुड बैक्टीरिया से लाइन होता है जो उसको प्रोटेक्ट करके रखता है.
अगर हम ओवरली क्लीन कर देंगे, हम बहुत सारे केमिकल्स लगाएंगे, हम बहुत सारा ऑल दीज थिंग्स वी पुट, वो बायोफिल्म टूटने लग जाती है एंड देन वी हैव फंगल ग्रोथ व्हेन देयर इज नथिंग प्रोटेक्टेड, फंगस ग्रो करने लग जाते हैं वहाँ पे. सो दे कम टू मी विद कैंडिडल इन्फेक्शंस, द ones who think that हम तो इससे ज़्यादा क्लीन नहीं रह सकते. So we have to find a balance. I don't really recommend any kind of brands. I don't recommend any chemicals down there. Normal soap and water जो आपकी body को suit करता है. Down there you keep it clean, but you have to keep it clean and don't leave it wet. You change your undergarments. You use cotton panties, and अगर आपको लगता है कि if it is wet, then you use a tissue paper. But hygiene is important, but don't overdo it. Thank you so much, Dr. Priyanka. It was very enlightening, and thank you so much. Thank you, Dr. Karima. So pleasure to be here.